कर्मावहे तेजस्विनावधीतमस्विद्विषावहे। शांति 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 हरि ओम। Yes. Vinod bhai will do this summary. अच्छा start करें. Yeah, this article is from Swami Brahmananda's book Eternal Companion. इसके बाद वाला दूसरा आर्टिकल भी हम इटर्नल कंपेनियन से लेंगे। ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साधना की दृष्टि से ये पुस्तक इटर्नल कंपेनियन एक्सट्रीमली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको गहराई से पढ़ना चाहिए। हम लोगों को तो ये कहा जाता है कि इस पुस्तक को जैसे श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते हैं उस प्रकार से इस पुस्तक को प्रतिदिन एवरी डे पढ़ना चाहिए। तो इस बार हमने उसको लिया, कुछ थोड़ा डिस्कशन हो जावे इसके ऊपर, कोई प्रश्न आ जावे तो अच्छा रहे। ठीक है, ओके। विनोद भाई शुरू कीजिए। With the blessings of Sri Ramakrishna विनोद Dev. भाई का हमको दर्शन नहीं हो रहा है। विनोद भाई ने अपना वीडियो बंद कर रखा है, कोई बात नहीं, चलिए। With the blessings of Sri Ramakrishna Dev. हाँ भाई। आवाज आ रही है? जी। With the blessings of Sri Ramakrishna Dev and Swami Brahmesananji, we will do. I am doing summary of article spiritual practice. The common questions and confusions arising among the devotees like us who are aspiring toward the spiritual practice. Solutions and clarifications offered by Swamiji from the book Internal Companion. Selected questions are taken over here. Question number 1. With all my efforts, I see no spiritual unfoldment. Hence, I find no peace of mind. Answer is like this. If you cannot do job early hours of the morning, the spiritual sadhak should not take much food at the night. A sadhak should first learn about the spiritual path from some great soul, then methodically follow it. In the beginning, start with a method suited to your temperament. Only regular practice will bring perfection in it. Question number 2. Maharaj, I am practicing japa and meditation, but I have not yet acquired any taste for this. Somehow or other, I am struggling. On. What must I do? Answer like this. Try to create within yourself a burning dissatisfaction. Every night, before you go to bed, think for a while how much time you have spent in doing good deeds, how much in doing useless things, how much in sadhana, and how much you wasted in idleness. Make your mind strong through tapasya and brahmacharya. At the first, the sadhak has to pin his faith. It may be blind faith to the percepts of his guru or of some great soul. Then only one can advance towards the goal. There is no use in merely reading the scriptures and discussing them. Through meditation, the mind will become pure, and when the mind becomes pure, realization of God follows as a matter of course. To see God outside of ourselves is a right path to begin with. Afterwards, you will be able to see God within yourself. Next question.
Maharaj, when I sit for meditation, I find my mind roaming out the whole universe. It thinks of no end of things. How to stop this restlessness of the mind? Answer is like this. Never begin your meditation immediately after sitting on your asana. By discrimination, first draw the mind back from its external pursuits and lock it up within, at the scared feet of your Ishta. Then begin japa and meditation. If you do this for some time, the mind will naturally stop to wander. By constantly performing the job, the mind can easily be made calm and steady. And finally, it will lose itself into the Ishta. Whether you wish or not, sit on your asana at the appointed hour every day. If you carry on your practices for 3 years with such unerring regularity, I assure you that love and attachment for God will grow in you and you will feel yourself nearer to Him. Then you will be prompted from within to call upon Him and Him alone. Moderation in habits, in food and recreation, in everything, has been so strongly enjoined in Gita. No good comes of wandering here and there. Next question. How shall I steady the mind? How shall I steady the mind? By daily practice of meditation, and for this practice, early morning is the best time. Before meditation, reading from any of the holy scriptures will make concentration easier. After meditation, sit silently for about half an hour. For at the time of meditation, you may not experience its effect. It may come a little later. Therefore, it is said that if immediately after meditation you divert your attention abruptly to secular affairs, it will not only do you great harm in general, but it will also deter the growth of your mind towards the spiritual realization in particular. Job and meditation are the food of the mind, and their practice is the most essential. Daily, at least 2 hours of job and meditation is required. You must draw up a routine before you start your spiritual practice. Meditation is not an easy thing. When a lust, anger, greed, and the whole host of evil passions are kept under control, then and only then alone does the meditation become possible. Without meditation, the mind cannot become tranquil, means mind cannot come at peace. And without peace, religion is not possible. To think, I shall meditate when the mind grows, tranquility, is to think of an impossibility, tranquility. Meditation and peace must go hand in hand. Next question. Maharaj, the different rituals and the forms of worship of our various gods and goddesses, do they mean anything special? To meet these varying demands of the scriptures, have prescribed 4 principal means. Number 1, the practice of Brahma consciousness. Number 2, meditation.
Number 3, job and prayer. Number 4, external worship. When a man desires to perform sadhana, now what should he do? Can he begin from any point? No. He must start exactly from where his mind stands and proceed stage after stage till the goal is reached. Finally, the mind grows, the less becomes the joy of man in the things, gross and secular. If you begin puja now, later on you will feel naturally that job is better substitute. Then you will find in meditation a far better substitute, and so on. This gradual process is a natural way of growth for the human mind. Is it okay? 1 minute. Achha. To avoid all untoward circumstances in your march towards spiritual realization, you must follow the gradual path that is marked out of us by the seers of the past. The different form of worship constitute that path, ways and means, rules and regulations. This exists in the physical as well as the mental world. This is over. My special thanks to Dr. Pankaj Bhai, who have helped me to prepare this summary. Good. Okay. You're done well. Good. Good. एक्चुअली ये क्या है कि इसके सभी लोगों को ये तो समरी हमने एक पंकज भाई को, दिलीप भाई को, विनोद भाई को करने को बोला, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को, सभी पार्टिसिपेंट्स को उसमें से एक समरी अपनी खुद बना लेनी चाहिए और उसको रोज पढ़ के और उसके अनुसार इंस्ट्रक्शंस के हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। उसको धीरे धीरे करते करते ये सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे जीवन में आ जाएंगे। अभी तक तो हमने बहुत सारे आर्टिकल नेशनलिज्म के ऊपर लिए, वेदांत के ऊपर लिए, अद्वैत के लिए ऊपर लिए, लेकिन ये और अगली बार वाला जो आर्टिकल दोनों है ये ब्रह्मानंद जी की इस पुस्तक से है। ये साधना से, पूरा साधना से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ध्यान जब कैसे करना। और उसमें कई बार हम लोगों को दिक्कत हो जाती है, खास करके सीनियर सिटीजन हम लोग हो गए हैं तो उनको हमको कठिनाई होती है, उसको करने से, पढ़ने से अच्छा रहे। तो छोटी सी अच्छी समरी कर दी है। अब हम क्वेश्चन शुरू करें। अच्छा, तो मेरे पास जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी क्रम में मैं जनरली क्वेश्चंस अपने रिप्लाई करता हूं। तो सबसे पहले इस बार आया था सुबीर मजुमदार के क्वेश्चन। सुधीर आ जाओ। हाँ, प्रणाम महाराज जी। जस्ट 1 मिनट। महाराज पहले तो शेयर करूंगा जो आपने अभी अभी कहा। मैंने इस आर्टिकल का खुद ही एक समरी बनाया, पॉइंट वाइज 2 पेज का समरी है मेरा, और मैं सपना से कह रहा था कि ये इतना अच्छा है, वी शुड रीड इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिल्कुल वही बात जो आपने अभी कही। यस यस। तो मैं सवाल शुरू करता हूँ महाराज जी। ऑन पेज 154 second paragraph, Swami Brahmananda says, faith cannot be had in the beginning. First realization, then faith. At first, the faith may be blind faith. Please explain this statement, Maharaj. मैं जाऊंगा तो मालूम पड़ेगा। अच्छा, देखिए इसके इंटरेस्टिंग एक किसी का है, शायद श्री रामकृष्ण का ही है या क्या कहे, श्री रामकृष्ण है या स्वामी विवेकानंद या ब्रह्मानंद जी खुद ही कहते हैं कि फेथ इज ब्लाइंड। तो इसके ऊपर किसी ने कहा है इन्हीं में से कि फेथ क्या ब्लाइंड विथ आईज वाली होती है, फेथ की ब्लाइंड होती है, ऐसा कुछ होता है क्या? अरे फेथ तो हमेशा ब्लाइंड होती है, अंधविश्वास जिसे बोलते हैं ना, तो विश्वास तो हमेशा अंधा होता है, अंधा ही होता है। मैंने को कहा है मैं कर रहा हूँ, बच्चे ने माँ का विवाह के ऊपर विश्वास हो गया,
क्यों कर रहा है? मां नहीं जी। कह रहा, बस और कुछ नहीं। बेटा उस कमरे में मत जाना, उसमें जूजू है, तो उसने मान लिया। माँ ने बेटा बोल ऐसा दिया। नहीं करना, पाप लगेगा, उसने मान लिया। जी जी और ये फेथ जो है इसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ। तो ये जी जो जी है ये हमेशा फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं होती, इसे ब्लाइंड फेथ से लेके शुरू करना पड़ता है। उसके बाद में क्या होता है, जब साधना करते हैं तो उससे हमको लाभ होने लग जाता है, हमको कुछ रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन का क्या मतलब, कोई दर्शन तो नहीं, माइंड शांति, जी। पीस मिलती है, आनंद मिलता है, कभी क्षण भी अच्छा हो अच्छा। जाता है। तो यह फेथ जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, वो जिसे आप कहते हैं सच्ची फेथ। ब्लाइंड फेथ जो है वो राइट। रियल फेथ हो गई, विद आईज वाली फेथ हो गई, यानी यू रियली एक्सपीरियंस समथिंग एंड दैट इट बिकम्स फेथ। इज दैट ओके? यस महाराज, छोटे छोटे रियलाइजेशंस ठीक है। होते हैं और उससे फेथ। हाँ महाराज, समझ गया। स्मॉल छोटे छोटे हुआ, रियलाइजेशंस अब हैपन। कर रहे हैं, इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं, भगवत दर्शन तो हाँ नहीं हाँ हुआ, हाँ। भगवत तो दर्शन तो नहीं उससे हुआ है, लेकिन हाँ फिर भी हाँ थोड़ा हाँ। थोड़ा तो आनंद मिलता है जीवन में, जी 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 आनंद जी आता है, जी जी प्रतिष्ठा हो जाती है, तो इससे हमारी फेथ जो है वो बढ़ेगा। जी जी एग्जैक्ट। महाराज ठाकुर को स्वामी विवेकानंद जी ने ये पूछा था प्रश्न। अच्छा अच्छा, तो ठाकुर ने क्या बोला था कि क्या ठाकुर के साथ फेथ तो हमेशा ब्लाइंड ही होता है। ब्लाइंड ही होता है। हाँ हाँ, Second question, ठीक है। Maharaj. Second question, on end of page 161 and the beginning of page 162, Swami Brahmananda is talking about solitude. He seems to suggest that two people may be permissible for a retreat into solitude. Normally, we understand that solitude means to be alone. So far, I have been rarely able to go alone into solitude. एक आध बार गया हूं केवल. Mostly it has been with my wife, who is also my spiritual partner. Is that acceptable? Will it count as solitude? You see, ideally solitude must be alone. एक वो भजन है ना तुम्हारा, नाथ तुम्हें सर्वस्व अमार, जी जी। सुना है ना, बहुत फेमस गान है, भजन है, ठाकुर बहुत हाँ पसंद हाँ करते हाँ थे। हाँ प्राणाधार सारात सार, नाही तोमा हाँ बिने केहो त्रिभुवने बोलीबार अपनार। और फिर जी तुम्हें सुख शांति सहाय संबल, संपद ऐश्वर्य ज्ञान बुद्धि बल, तुम्हें वासगृह आरामेर स्थल, आत्मीय बंधु परिवार। भगवान ही हमारे परिवार हैं, बंधु हैं, एवरीथिंग। तो ये जब तक नहीं होता तब तक यू मे हैव सम कॉम्प्रोमाइजेस। जी जी। ये जो आप कर रहे हैं, इट इज अ कॉम्प्रोमाइज, डोंट टेक इट एज द आइडियल थिंग। आइडियल नहीं ऐसा है, है ठीक कि है। यू हैव टू हैव ए कंपेनियन, ए स्पिरिचुअल कंपेनियन, ओके, वन थिंग, एंड टू बी हैविंग अलोन विद ठाकुर इज ए डिफरेंट थिंग टोटली। तो जी जी। try to have a absolutely alone spiritual retreat Absolutely alone, also yes. I would say, okay? जी जी हाँ। जी महाराज। महाराज एक क्वेश्चन और करूंगा जो मैंने आपको भेजा नहीं था। ये सवाल था अच्छा, हो गया। कि स्वामी ब्रह्मानंद, हाँ, स्वामी ब्रह्मानंद जी बोलते हैं कि आफ्टर यू फिनिश योर मेडिटेशन डोंट गेट अप इमीडिएटली, आधे घंटे बैठे रहो। तो ड्यूरिंग दिस हाफ एन आवर ऑफ सिटिंग आफ्टर मेडिटेशन व्हाट शुड वी डू? इस आधे घंटे में हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? कुछ नहीं कर, कुछ नहीं कर कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा, एट द मोस्ट आप ऐसा कर सकते हो, अपने मन को देखो, बस जस्ट ऑब्जर्व योर माइंड। ओके। अपने मन को थोड़ी देर देखते रहो, जब मन अच्छा। थोड़ा सा गहराई में जाने लग गया, यानी थोड़ा मन जब बहिर्मुखी होने लग जाए, तब उठ जाओ। जी जी। ऐसा नहीं है कि आधे घंटा होना ही चाहिए। जी जी, उसके 10 बाद मिनट देखा 15 कि मिनट मन 20 इधर उधर मिनट। बात जा रहा है, मन
संसार की सोचने लग गया है तो 15 मिनट में उठ जाओ। इट्स नॉट नेसेसरी दैट आधा घंटा ही बैठना। जी 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 ठीक है गहरा महाराज। ध्यान यदि होता है तो उसके बाद में इस तरह का बैठना ठीक है, और अपना छिछला ध्यान हो रहा है तो उससे कुछ नहीं होता। जी वो तो जी जी ध्यान और जितना संसार गहरा में ज्ञान बैठा होगा एक ही उतना, हाँ जितना गहरा ज्ञान हो ध्यान होगा उतना ज्यादा बैठने की चांसेस ज्यादा है। मन खुद ही बैठा रहता है। अपने आप राइट गई ना। महाराज। बाहर बैठने का जो है, हाँ हाँ इट इज नॉट ए फोर्स थिंग, यानी जी बस जी रिलैक्स होके बैठे, थोड़ी देर बैठे, उठ के चले। जी महाराज। दैट्स ऑल महाराज। प्रणाम महाराज। दिलीप भाई, दिलीप भाई आ जाओ मैदान में। अनम्यूट कर लीजिए दिलीप भाई। हाँ, प्रणाम महाराज जी। हाँ दिलीप भाई, जी अब आपके आए। तीर चलाइए, आपके तीर जी। चलाइए। अरे महाराज जी, पहले तो मैं ये एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जो सुबीर जी ने पूछा था उसके सप्लीमेंट में मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ इस आर्टिकल में स्वामी जी ने लिखा है टू of a similar type and temperament should live together. In that case, mutual help and guidance may be rendered. Should any crisis befall one or the other at any time. तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये आर्टिकल भी ये बताता है कि हमें कभी भी तकलीफ आए तो जो कहा जाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखो, इसके बजाय यहाँ ये बताया गया है कि दूसरा साथी होगा तो उस पर विश्वास रख सकते हैं, उससे अपना काम हो सकता है। इसका मीनिंग ये बहुत होगा अच्छी क्या? बात है। हाँ हाँ होगा होगा। हाँ, ये सुबीर जी जो है तो अपनी वाइफ के साथ उन्होंने स्पिरिचुअल कंपेनियनशिप की है जी यानी उन्होंने स्पिरिचुअल संबंध स्थापित किया है। जी तो कुछ समस्या होगी तो डिस्कस कर सकते हैं उनसे। हम लोग जो हैं यार इतने साधुओं के बीच में रहते हैं, तो कितने साधुओं के बीच में रहते हैं ना, सब अपने अपने टेम्परामेंट के हैं। जी जी इसमें एक के साथ जम गया हमारा, एक से साथ अपनी दोस्ती ज्यादा हो गई, कभी कभी उससे बात कर लेते हैं, क्या बात, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, परफेक्टली फाइन। उस सेंस में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा दूसरा सेंस यहाँ पे आ रहा है कि शुड एनी क्राइसिस बी फॉर वन और द अदर एट एनी टाइम, यानी ये क्राइसिस स्पिरिचुअल नहीं फिजिकल की बात कर रहा हूं मैं, कि यहाँ पे इसको फिजिकल लेंगे या स्पिरिचुअल क्राइसिस? नहीं, स्पिरिचुअल क्राइसिस की बात है। ओके, दैट इज राइट। नहीं, फिजिकल क्राइसिस होगा तो फिजिकल लोगों के पास में जाओगे आप जी। ओके, राइट महाराज जी। हाँ, अब मेरा पहला सवाल है, व्हाट इज परफेक्ट प्योरिटी? पेज नंबर 150। व्हाट इज परफेक्ट प्योरिटी? निस्वार्थता, अनसेल्फिशनेस। हाँ, तो यानी उसमें तीन बातें हैं, तीन चीजें परफेक्ट प्यूरिटी में, तीन चीजें ले भाई जी। परफेक्ट प्यूरिटी के तीन एस्पेक्ट है जी। पहला है निस्वार्थता, बोलते हैं ना, निस्वार्थ काम करने से यानी फल की इच्छा त्याग करने से चित्त शुद्धि होती है। तो आदमी में हमारे में कोई स्वार्थ नहीं है। दूसरा है काम क्रोध लोभ मोह का अभाव, विशेषकर काम का अभाव। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दूसरों के दोष दर्शन नहीं होना। दूसरों के हम दोष देखते हैं, वो चला जाएगा भाव परफेक्ट प्यूरिटी में। राइट। माँ शारदा के जीवन में तीनों चीजें थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो किसी के दोष देख ही नहीं सकती थी। यानी वो गुलाब माँ कहती है, गुलाब माँ किसी को डांट रही थी से नौकर को, तो माँ ने पूछा क्यों डांट रही हो, तो गुलाब माँ ने माँ को डांट दिया, तुमको बताने से क्या लाभ, तुम तो दोष देख नहीं सकोगे। यानी ऐसा कि किसी नौकर ने गलती की वो भी नहीं दिखे। कितना उच्च स्तरीय का मन है वो, मन में पाप जैसे चीज बुरी चीज है ही नहीं,
वो बुरी चीज बाहर देख ही नहीं सकता। नहीं पूर्ण रूप जी। से निस्वार्थ और काम को खास करके बोलते हैं प्यूरिटी। काम नहीं होना चाहिए बिल्कुल, जी काम क्रोध लोभ मह नहीं होना चाहिए। जी महाराज ठीक है, जी बराबर। ये नेक्स्ट तो आदर्श है, उच्चतम आदर्श है भाई। जी उच्च आदर्श जी। हाँ सेकंड क्वेश्चन मेरा है, गॉड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मिजरीज एंड ट्रबल्स। My question is, by protecting us from all miseries and troubles, then will we be not dragged into tamas and rajas? बहुत बढ़िया प्रश्न तुझे, बहुत बढ़िया किया। हम लोग डल हो जाएंगे हमारे जीवन में, अगर मिजरी अगर समाप्त हो जाए ना, तो हाँ हम लोग सब ढीले ढाले हो जाएंगे। तो भगवान जिसको प्यार करते हैं ना, उनको जी। थोड़ा सा दुख रख देते हैं। और जब भगवान वो पांडवों को जब वो मिल गया ना, राज्य मिल गया, युधिष्ठिर जो है राज्य हाँ। राज्याभिषेक हो गया, तो जाने लगे। भगवान ने कहा मैं चलूं, मेरा काम हो गया। तो हाँ। कुंती रोने लग गई। जी। कुंती रोने लगी कि जब तक हमारी विपत्ति थी तब तुम हमारे साथ हमेशा रहते थे, यस और अब विपत्ति चली गई तो हमको छोड़ के जा रहे हो। इसलिए कहते हैं प्रभु, कुंती ने प्रार्थना करते कहा कि हमेशा थोड़ी विपत्ति बनाए रखें, जिससे तुम्हारा अदर्शन नहीं होवे, तुमसे हम दूर नहीं जावे। बराबर। तो भक्त तो चाहता है कि थोड़ी विपत्ति रहे, जिससे भगवान हमारे साथ में रहे। यानी अहंकार, तमोगुण, रजोगुण ये नहीं आवे, ये बिल्कुल ठीक बात कही। इसलिए थोड़ी विपत्ति भले होवे, भगवान भी कृपा करके भक्तों को पूरी तरह मुक्त नहीं करते, थोड़ी भक्ति उनको कठिनाई कर देते रहते हैं। जी हाँ। Now my third question, what are the methods to approach God? और ये आप ही बताइए। महाराज जी, मैंने जो समझा है वो ये है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए दो तरीके हैं, द्वैत और अद्वैत। नाउ यदि अद्वैत में जाते हैं तो हमें साधना करना है, हम ब्रह्मास्मि सोचना है 24 घंटे। और यदि हम द्वैत में जाते हैं तो हमें चार भाव है, दास्य भाव, मधुर भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, और इस प्रकार के अनेक भाव है जिसके अंदर हम रह सकते हैं, और इसके द्वारा भी हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। ये मेरी सोच थी। और इसके अंदर हम जो करते हैं भक्ति भाव के अंदर, मंदिर जाना, भजन करना, पूजा करना, दर्शन करना, आरती करना, दान करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ये एक, और गीता पाठ करना, रामायण का पाठ करना, दैट इज व्हाट द प्रोसीजर। जी बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं? जी जी हाँ महाराज जी, आप जी। पहले तुमने दो बात बता दी, एक तो हुआ अद्वैत वेदांत का भाव ना, हाँ जी तो उसको हम बोलते हैं ज्ञान योग। जी बराबर। और बाद में द्वैत का बात बताया जो तुमने, हाँ वो भगवान की भक्ति योग। ठीक है, हाँ जी बराबर, बिल्कुल। और तीसरा मार्ग है राजयोग का। हाँ यस। हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, हाँ, ध्यान का भाव। जी हाँ, और कर्म और चौथा है कर्मयोग। योग। यस, कर्मयोग। कर्मयोग भी हो गया ना। हाँ तो ये चार योग हो गए ना, चार योग जो हैं उसमें आपका सब आ जाता है। ठीक है, ओके, राइट महाराज जी, ये तो हाँ जी ठीक है, थैंक यू। राइट महाराज जी। नाउ नेक्स्ट, और देखो याद रखो, जी एक और याद रखो, जी और ब्रॉडली स्पीकिंग और व्यापक लेने पे तो संसार के जितने धर्म हैं वो हाँ सब के सब भगवान को प्राप्ति करने के मार्ग। जी ठीक है ना, हाँ ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, ठाकुर ने तो कई सब धर्मों को प्रार्थना किया ना, जी बिल्कुल किया इन्होंने। तो हाँ उन्होंने तो इतने सारे भगवान को प्राप्त करने के मार्ग बता दिए। जितना ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म, वैदिक धर्म और
तंत्र के साधना और तांत्रिक साधना में 64 प्रकार की साधनाएं, ये सब जो है विभिन्न प्रकार के भगवान को प्राप्त करने के माध्यम। पर महाराज जी कहते हैं कि ये तांत्रिक साधना से ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती है या लंबी नहीं चल सकती। क्यों नहीं हो सकती? तुम फंस जाओ क्या? एक प्रकार से बहुत फायदा भी है उसमें, एक प्रकार से बहुत फायदा है उसमें। वैदिक बड़ा मुश्किल है जी। उस दृष्टि से तंत्र साधना है, सिर्फ ये है कि खतरा उसमें ज्यादा है, लेकिन कोई बात ऐसी कोई बात नहीं। क्या यानी तांत्रिक साधना से भी हम ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञ और अरे हाँ, अरे ठाकुर ने तांत्रिक साधना से 64 तांत्र संत थे, उनको सब प्राप्त किया उन्होंने। हाँ जी। अच्छा जी जी महाराज जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेवर बी कैलकुलेटेड, व्हाट इज द मीनिंग इन अ पाथ ऑफ साधना? साधना के पाथ में कैलकुलेशन का क्या सवाल है और क्या चीज है? अरे मैंने 5 साल तक साधना किया, 5 साल तक साधना किया, मेरे को एक भी दर्शन नहीं हुआ, ये क्या बात है? ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, मैंने 5 साल, ये साल का जो है ना, ये मैंने कैलकुलेट करने में क्या करते हैं, इसको कहते हैं ना कि इतना पैसा दिया मैंने। हाँ। मैंने 10 रुपए दिए तो मेरे को तुमने सिर्फ 5 रुपए की दवाई मिठाई दी है, 10 रुपए की नहीं दी, ये कैलकुलेशन हुआ ना। यस। हाँ, तो उसी प्रकार है कि मैंने 10 साल तक साधना की और मेरे को दर्शन नहीं हुआ, ये क्या बात है? मैं 5 साल तक 20 साल तक साधना करूंगा, अब क्या फायदा होगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हुआ कैलकुलेशन, यानी सौदेबाजी। हाँ, वो साधना के प्रति जानना चाहता है। बराबर। साधना में सौदाबाजी नहीं करना जी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। तुम तो समझ रहे कि हमने किया, तुमने कभी कभी जो है 5 साल में 2-4 दिन, 15 दिन, 20 दिन तो तरतड़ी मार दी थी, और कभी किया था तो अच्छे पूरे मन से नहीं किया था। ये कैलकुलेशन से कैसे काम चलेगा? ओके, राइट, समझ गए जी महाराज जी। हाँ, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मधुकरी फूड बीइंग ऑलवेज गुड इवन गिवन बाय इम्प्योर पर्संस? हाँ, क्या करें? नहीं, हम तो मधुकरी में जाते थे जी। सुनो, मधुकरी में जाते थे, स्वीपर पाड़े में भी जाते थे। हाँ। यानी ब्राह्मण लोग जहाँ रहते हैं उधर भी जाते थे, और स्वीपर पाड़ा में भी जाते थे। अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन पवित्र है कौन पवित्र नहीं है? जी। नारियों ने, मेन ने दिया, विमेन ने दिया, क्या है उसमें, क्या है? हम थोड़ा हर एक घर से कितना लेते हैं? हाँ। एक कम से कम 3-4 घर से लेना पड़ता है, एक घर से नहीं लेते पूरा। अच्छा। तो कितना लेते हैं? थोड़ा। हाँ, और वो भी भगवान को, नारायण हरि भगवान का नाम लेके लेते हैं। ओके। और फिर भगवान को अर्पण करके फिर खाते हैं। अच्छा। तो वो दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि जैन धर्म के अंदर एक स्टोरी बताते कि जैसा अन्न वैसा औकार, यानी जैसा खाते है हो ना, है। हाँ, तो इसने अरे नहीं, वो तो ठीक है, डेफिनेटली है। हाँ। अरे घर पे भी अगर तुम तला चीज खाओगे जी, घर पे, खूब गरिष्ठ आहार खाओगे, तो उस दिन ध्यान अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। तो जी। तो अन्न दोष जो है, जाति दोष भी होता है, निमित्त दोष होता है, आश्रय दोष होता है, 3 प्रकार के दोष हैं। तो जाति दोष यानी आपने गरिष्ठ खाना खाया, मांस खाया, घर में बना हुआ हो तो भी उसको तो प्रभाव पड़ेगा, ये तो जाति दोष हुआ। हाँ। उसमें है ना, वर्णन आया ना, आर्टिकल में ही आया है। जी। जाति दोष आ जाता है। उसके बाद में है निमित्त दोष। जी। कितने, किसके हाथ से लिया तुमने, हाँ। वो आदमी ठीक है कि नहीं, किसने बनाया। जी। और तीसरा है आश्रय दोष, उसके ऊपर धूला पड़ा हुआ है, बाल पड़ गया है, कचरा पड़ गया है उसमें खाने में, तो ये तो अपवित्र हो गया ना। तो ऐसे तो बहुत सारे दोष देखने जाओगे तो खाना खा ही नहीं सकोगे। तो ना, जो भी हो, तो जैसा भी हो, अच्छा खाना मिल जावे, किसी भी घर से ले लिया, ठाकुर को अर्पण कर दिया, बस।
महाराज जी जैसे ये बताते हैं कि कोई भी खाना हो उसको ईश्वर का नाम लेके वो पानी का वो लगा के खा लेते हैं तो वो पवित्र हो जाता है, उसके सब दोष मिट जाते हैं। हाँ, तो वो जो मांस को करो, मछली को करे तो उसका मांस और मछली का दोष तो रहेगा। नहीं वो नहीं, एक जनरल। हाँ, जनरल जनरल वही तो मैंने कहा कि भगवान को स्मरण करके थोड़ा जी। आचमन करके कर लिया, हाँ यानी वो पानी छेड़ना यानी क्या, भगवान को मैंने समर्पित किया। जी बिल्कुल। 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान कर लिया, भगवान को मनी मन समर्पित कर दिया, समर्पण वस्तु कर दिया, ब्रह्मार्पणम वस्तु, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर हम लोग गाते हैं, मंत्र करते हैं ना, हाँ ब्रह्मार्पण, जी जी। वो कर दिया बस और खा लिया। ओके जी बराबर जी महाराज जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, is samadhi being like a sugar? The person who goes in samadhi can experience what is samadhi, but it cannot be explained. Am I correct? करेक्ट करेक्ट। जी। Now my next question is, after doing hundreds of sins, how God can be realized? Page number 171 पे लिखा है। अरे पापी जो है वो तार जाते हैं। अजामिल का नाम सुना कि नहीं हाँ, तुमने? जी जी वो तो सुना जी। अजामिल तो ऐसा था, हाँ वो क्या कहते हैं, कैसा था? अच्छा, फिर तुमने दूसरा नाम सुना है? अंगुलीमाल। अंगुलीमाल का, अंगुलीमाल जी। हाँ, वो इतना डाकू था कि उसने बना रखा था कि 100 आदमियों की अंगुलियों का मैं माला पहनूंगा। बराबर जी। 99 हो गए थे, बुद्ध आ गए उस समय, हाँ मारने जा रहा था, बहुत खुश हुआ, बुद्ध के प्रभाव से वो ठंडा हो गया, यस उसके बाद साधु बन गया। बराबर। और जानते हो क्या हुआ था? एक बार भिक्षा मांगने जा रहा था, पिटाई विटाई सब हुई, लोगों ने सब हाँ सहन किया उसने। जी। एक बार भिक्षा मांगने जा रहा था, तो एक लेडी ने बोला, बच्चा, उसका छोटा बच्चा गोद में था, वो मर गया। हाँ क्योंकि आप लोग तो संत हो, इसको जिला दो ना, सच्चा अच्छा कर दो, अच्छा कर। कृपा करो ना इसके ऊपर। तो जानता नहीं, बुद्ध के पास गया हाँ कि क्या करूं, वो इसे बोल रही है। तो बुद्ध ने कहा कि देखो, तुम ऐसा करो, उसके सामने जाकर बोलो कि बुद्ध के शरण में आने के बाद में मैंने अगर कोई भी पाप नहीं किया हो तो ये बच्चा जीवित हो जाए। हाँ जी। वो गया, उसने कहा बुद्ध के पास की शरण में आने के बाद मैंने कोई पाप नहीं किया है, बच्चा जीवित हो, बच्चा जीवित हो गया जी। अब देखो, एक बार में मुक्त हो गया। इन्हें पाप जाना है तो ऐसा नहीं है कि एक एक करके जाते हैं, कितने ही हैं। और चैतन्य महाप्रभु थे, जगाई मगाई थे डाकू, जी जी। उनको उन्होंने परिवर्तित कर दिया। हाँ तो कहानियां बढ़ी हुई हैं। महाराज जी मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि कहानियां है, पर that they are exceptions, that cannot be a rule. अब ये पढ़ने से जनरल यदि हम लोग जो पढ़ते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि इवन आफ्टर डूइंग हंड्रेड्स ऑफ सिंस वी कैन रियलाइज गॉड। ये यानी हमको यस 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 महाराज जी ये हमको सिंस करने से रोकता नहीं है ये पढ़ने के बाद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं 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 नहीं, यानी वहां रुकना तो पड़ेगा आपको, यानी रुकना तो पड़ेगा। वो उसमें भी है, वो मैंने कही थी ना तुमको, वो अपने मुसलमान संत की एक था, वो था ये सूदखोर। हाँ पैसा देता था इंटरेस्ट पे जी। और इंटरेस्ट नहीं मिलता था तो जाके उसका खाना पीना उठा के ले आता था, ऐसा बदमाश। बराबर। और एक बार उसकी पत्नी खाना बना रही थी, तो खाना बनाया तो देखा खाना में खून ही खून भरा हुआ। हाँ 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 यस। एक तो उसकी माँ पत्नी भी हैरान हो गई थी, इतना इतना जल्लाद है ये। ना देखो तुम्हारा ये हाल है, बड़ा बुरा हुआ। उस गया, गुरु के पास गया, उसने तौबा कर लिया। तौबा यानी कन्फेशन करते ना, अब मैं नहीं करूंगा, जब जब तौबा दीक्षा ले ली। उसके बाद पहले जब जा रहा था तो बच्चे चिल्लाए, कह रहे भागो भागो, ये जा रहा है, इसकी धूल हमारे ऊपर लग जाएगी तो हम पापी हो जाएंगे। जब लौट रहा था तो बच्चे फिर भागे, भागो भागो कि ऐसा नहीं हो कि हमारे पैर की धूल उस पर लग जाए और हम पापी सिद्ध हो जाए।
एक दिन के अंदर ऐसा परिवर्तन हो गया उसकी। Yes. तो पाप के 1 मिनट में उसको अब मत करो, दैट इज द थिंग। Right. जी महाराज जी। यानी 1000 पाप भी किया, अब नहीं करूंगा, इस पॉइंट पे उन्होंने कन्वर्शन। यानी आपकी जब दीक्षा होती है रामकृष्ण मिशन भी हाँ, होती है जी, कहीं भी जी। गुरु के पास में, तो हाँ। गुरु कहते हैं कि इसके पहले जो पाप किए थे सब तुम भगवान को अर्पित कर दो, जी अब पाप नहीं करना, बराबर। बस। दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट। और ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाप करता भी जाऊंगा और फिर मुक्त होता भी जाऊंगा, ऐसा नहीं। बराबर जी महाराज। हाउ टू नो आई एम फिट और नॉट फॉर वैष्णवाइट साधना ऑफ मधुर भाव और साकरी भाव? महाराज ये पेज क्या बोला? 173 पे लिखा हुआ है। हाँ, Yes, sir. The Vaishnavite sadhana of Madhur Bhav or Sakhi Bhav is exceedingly dangerous for those who are not fit for it. हाँ, इसका क्या है ना? Why it is so? ऐसा है कि उसमें अपने को स्त्री समझना पड़ता है, भगवान को पुरुष समझना पड़ता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है ना, ऐसा रिलेशनशिप करना पड़ता है ईश्वर से। जी हाँ। तो हमारा मन जो है वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की ओर चला जाता है, जी। और ऐसे में अगर किसी स्त्री और पुरुष के ऊपर मन आकृष्ट हुआ तो खतरा होने का डेंजर है। अच्छा जी। यानी मन भगवान में रखना हो तो ये भाव बड़ा कठिन है। हाँ हाँ इसको हाँ, मतलब राइट। भगवान को बालक समझ लिया तो आसान है। हाँ, वात्सल्य भाव सबसे। भगवान के को यदि आपने पिता समझ लिया तो भी ठीक है, माँ समझ लिया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। लेकिन अपना पति या पत्नी समझ लेने पे प्रॉब्लम हो सकती है ना। मन जब नीचे आया कि दूसरे भाव में आ गया, दूसरी पति पत्नी स्त्री पुरुष को देख लिया तो समस्या हो जाएगी ना। जी। चलो नेक्स्ट महाराज जी। When he gets the highest spiritual vision, he will come face to face with truth. What type of a truth? I understand there is nothing like a truth or untruth in Advait Bhav. Am I correct? Page 175. Further, at the highest stage of spiritual experience, body is cast it off. Means what? अरे भाई, मेरे को तो हाईएस्ट ट्रूथ का दर्शन हुआ नहीं है, मैं क्या बताऊंगा तुमको, बोलो। हाँ, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मत क्या करो भाई। नहीं, अरे महाराज जी, अब ब्रह्मानंद जी और सबसे ज्ञान प्राप्त किया है वो हमें बता दें। अरे तो ब्रह्मानंद जी ने दर्शन किया ना, हमने कहाँ किया। तो हाईएस्ट ट्रूथ में क्या होता है हम क्या बताएंगे, सोचो तो सही तुम। जी, that's right. Yes. अच्छा, पर ये आगे का जो सवाल है मेरा, उसी के साथ जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है ना। हाँ, वो मेरा कहना है। क्या है वो? And cast it off in samadhi, spiritual experience. Some persons attaining this state look upon the body as an obstacle to the unbroken spiritual experience and cast it off in samadhi. उसको फेंक देते क्या? वो समाधि अपने शरीर को छोड़ देते हैं, क्या फायदा। मेरा जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया, फिर संसार के चक्कर में क्यों पड़ूं मैं। जी, अपना छोड़ देते हैं शरीर। अच्छा, जी। नेक्स्ट सवाल है मेरा एक आखिरी। इन स्पिरिचुअल विजन हाउ वी लुक ईस्ट इन ए लिविंग गुरु? है How can we see East in a living Guru? Page 177. देखो हमारे यहाँ जैसे दीक्षा देते हैं ना, कहते हैं गुरु सामने है। हाँ, हाँ, तो गुरु बोलते हैं देखो मैं गुरु हूँ और तुम्हारे इष्ट है कृष्ण। ओके जी जी। अच्छा, उसके बाद में कहते हैं क्या होता है कि गुरु कहते हैं देखो मैं तुम्हारे इष्ट में मिल गया। उसको दर्शन होता है, ऐसा लगता है कि गुरु जो है वो इष्ट में मिल गया। अच्छा,
ध्यान करने में भी कहते हैं कि गुरु का ध्यान करो सिर में जी और इसका ध्यान करो हृदय में। जी फिर बाद में ये भी कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं है, वो गुरु को इष्ट में विलीन करो। तो गुरु और इष्ट एक, तो ये भगवान ही जो है, इष्ट ही है, वो तुम पर कृपा करने के लिए गुरु बने हैं, तुम पर उन्होंने कृपा कर ली, उसके बाद में गुरु और इष्ट एक। जी और there is yet another state of spiritual experience which is beyond both absolute and relative. Yeah, page 178 पे है। हाँ, वो कहते हैं दो तीन चीजें, एक द्वैत होता है, एक होता है अखंड सच्चिदानंद होता है। हाँ उसके परे एक और चीज होती है बाबा, अपने ही मत। जी अरे हम तो द्वैत के सिवा काम ही नहीं चलता, अद्वैत की बात ही नहीं समझ में आती। ये हाँ, उसके बियॉन्ड बात कर रहे हैं कि दोनों के परे भी एक कुछ चीज होती है, तो वो हाँ, हमको नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। जी बस महाराज जी, पर ये सीधू कोई घोष, महाराज जी कोई चीज होती है बियॉन्ड। अब क्या मालूम बाबा, जब तक हम शरीर में हैं तब तक कैसे बता सकते हैं इस चीज। और शरीर न रहने पर बताने का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, ये तो ब्रह्मानंद जी बहुत ऊंचे स्टेज पे बोल जी, रहे हैं बाबा। हाँ जी जी बस महाराज जी प्रणाम। अच्छा भाई, आ जाओ इतु घोष, आ जाओ, तुम्हारे निशाने जी, चलाओ। प्रणाम महाराज। अच्छा, हाँ, मेरा पहला प्रश्न है, डू यू परफॉर्म जप विद द फोर्थ फिंगर? It is better not to do that way. This is from the text. Now my question is, why forefinger is not used in performing japa? If this instruction is not known properly, how will it affect in sadhana? ऐसा है कि ये जो है ना उंगलियों का, फिंगर्स की बात है ना, जी है ये उसमें वैदिक नहीं है, ये तंत्र में है। वो कहते हैं कि आप इंडेक्स फिंगर को टच नहीं करना चाहिए, ये बीच अच्छा। वाली उंगली से करना चाहिए। वो कहते हैं कि उसको करने से क्या क्या सब होता है बाबा, समझ में नहीं आता। वो लोगों में तांत्रिक सिचुएशन है, मैंने डिस्कस भी किया। ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो हमारे जीवन में होना चाहिए कि जब करो बोल दिया। अब वो ये नहीं बोलेंगे कि बैठ कर जब करो। अब बैठना है तो कुर्सी पे बैठूं कि नीचे जमीन पे बैठूं, जमीन पे बैठूं तो किस आसन में बैठूं, सिर कैसा होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए। ये रूल्स रेगुलेशन नहीं होवे तो हमारा ध्यान जब जो है ना इरेगुलर हो जाएगा, उससे लाभ नहीं होगा। हम संसार में जो काम करते हैं उसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। कंप्यूटर में है तो कैसे कंप्यूटर को रखना है, उसके बाद में कंप्यूटर फिंगर्स कैसे काम करनी है, इसके सब तो रूल्स बना लिए। संसार के सारे कामों के बड़े रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। ट्रेन में जाओ, टिकट भी है, वो टीटी देखता है आप कौन सी सीट पे बैठे हो, ठीक सीट पे बैठना है। ये सब बातें संसार के बारे में इतने रूल्स रेगुलेशन से। और ध्यान करने आए हम, क्यों उंगली को ऐसा करें, क्यों उंगली को ऐसा करें, ये प्रश्न करना। अरे भाई कुछ रूल तो होना चाहिए। ये बोलते हैं कि जो उंगली इंडेक्स फिंगर है ना, ये क्या है कि अहंकार का प्रतीक। वन ऑफ द रीजंस आई मैं अहंकार का प्रतीक है, इसलिए इसको नहीं सुनना चाहिए, दूसरे को करना चाहिए। एक ये रीजन पहला मैंने देखा था, इस अहंकार का। ठीक है, और भी बहुत सारे दिए हैं रूल्स। जी ठीक है। My second महाराज माला जप में इंडेक्स फिंगर का यूज नहीं करते हैं, परंतु कर जप में तो करते ही हैं। हाँ, कर जप में करते हैं। हाँ जी, और माला जप में ऑलवेज ऊपर रखना पड़ता है, ये नहीं अहंकार का प्रतीक है, इसलिए माला जप में नहीं करते। हाँ, और आपके निवेदिता जी की कभी ऐसी उच्च श्रेणी हो जाएगी क्या, उसके बाद में कुछ भी नहीं रहेगा, अपने आप जब चलता रहेगा, हाथ पैर कोई भी स्थिति नहीं रहेगी, तब क्या होगा? मानसिक जप
the highest. अच्छा, second question. You must do more japa and meditation on Amavasya, Purnima and Ashtami. So tithis. So what are the specific spiritual significance of these days and how does it benefit the sadhaka? ऐसा है कि देखो, ये क्या है कि प्रकृति के स्पेशल वो सिचुएशंस हो गई है, और प्रकृति का मानव के प्रभाव शरीर और मन पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं, ये तो जानते हो ना जी। ये तो पड़ता बादल है। छा गए तो मन थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, सूरज पूरा उग जावे तो मन भी प्रसन्न हो जाता है। सुबह सुबह उठकर हम सूरज देखते हैं, अच्छी सूरज हो, प्रकृति अच्छी हो, ठंडी हवा चल रही हो तो मन अच्छा हो जाता है। तो ये प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, इन चीजों को लोगों ने समझा है और ये कहा है कि भाई अष्टमी, अब जैनिज्म में जैसे कहते हैं चतुर्दशी और अष्टमी, और यहाँ कहते हैं एकादशी है, अमावस्या है। तो सच पूछा जाए तो सभी दिन जो भक्त है उनके लिए सभी दिन अमावस्या है। अच्छा। लेकिन हम क्या करें कम से कम एकादशी तो करो। एकादशी ऐसा करने लग जाए तो कोई क्या करेगा, अरे भाई क्योंकि अच्छा ऑल्टरनेट डे एकादशी करो, माघ महीने में एकादशी करो, माघी पूर्णिमा करो, ऐसा करके करके धीरे धीरे कम करते गए जी। माघ मेले में जाओ, माघ मेले में कर लो जी। मैं गया था, मेरे को समझ में नहीं आया, पर हम जो घर में करते थे, आश्रम में करते थे, वो यहाँ भी कर रहे हैं। तो ये तो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, उनसे कुछ प्रभाव अवश्य होता है, लेकिन बाबा इससे क्या लेना देना है। अमावस्या और पूर्णिमा और एकादशी बोला, इस समय कुछ प्रकृति के विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये इनको इसमें थोड़ा सा अच्छा ध्यान जप करने की बात कही। अच्छा, इज इट ओके जी? ठीक। और मेरा लेकिन वो तुम अपने लगाओ, सुनो जी, एवरी दिन प्रतिदिन एकादशी करो जी। हाँ। जी जी हाँ। जी। मेरा तीसरा प्रश्न है, it is not desirable to give expression to our inner feelings, for that lessens the intensity of love. So what is the actual expression here? अरे तो आपको क्या है कि आपका जो भगवान के प्रति प्रेम हो रहा है तो आनंद है, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद है, क्या बात है। या फिर रो रहे हैं तो आंसू आ रहे हैं, ये आंसू आना, रोना, नृत्य करना, ये हमारे भीतर का जो भगवान के प्रति भाव है उसको अभिव्यक्त करना है। इस अभिव्यक्त करने से वो भाव कम हो जाता है, ये तो समझने की बात है। हाँ, एक बार अगर किसी से कोई प्रेम करे ना, संसारिक प्रेम में भी जो है ना, तो बताते थोड़ी है इस चीज को। लड़के प्रेम करते हैं तो चुप रहते हैं, किसी को बताते नहीं है। तो बताने से गड़बड़ हो जाएगी, डाउन हो जाएगा। हाँ, एक बार शादी हो गई उसके बाद में तो फिर प्रेम चला ही जाता है। महाराज ये जो भाव है ये रोका नहीं जा सकता है, अपने आप ही उठते हैं, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। नहीं इसको लेकिन बाहर एक्सप्रेस नहीं करना, पॉइंट इज दिस। परंतु ऐसा भी कभी समय आता है कि यू कैन नॉट कंट्रोल, बाहर ही आ जाता है, वो उस समय बहुत मुश्किल होता है। वो ठीक है जैसे मैं एग्जांपल दे रही महाराज, अभी मैं वो खार आश्रम में गई थी मुंबई में, तो वो कथामृत मुझे पढ़ने दिया, माँ की किताब पढ़ने दी, तो अपने आप ही आंसू आते ही जा रहे। लेकिन हमको तो हम कितना भी पढ़े, हमको कभी आंसू नहीं आते। भाव आ जाता है महाराज, भाव आ जाता है। सुनो
अरे ना, रूप सनातन का पढ़ो, चैतन्य महाप्रभु का जीवनी रूप सनातन। जी जी रूप सनातन कितने बड़े संत थे ना, जी उनका महाराज। जी। कोई भी भाव अभिव्यक्त होता था। फिर पढ़ा कि नहीं? जी हाँ उसको पढ़ना, जी पूर्ण बिल्कुल भाव, हम्म। आंसू तक नहीं आते थे, वो कंट्रोल करके रखते थे। हाँ ये हमारी वीकनेस है, याद रखो। वीकनेस है। इसको मत समझना कि जी जी जी। महाराज जी हम लोग देखते हैं जब आश्रम में प्रोग्राम होता है, भजन होते हैं, सब कुछ होता है, तो जितने सन्यासी लोग हैं वो बिल्कुल स्थिर बैठे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हाथ टैप करते हैं, भाव बिल्कुल नहीं प्रकट करते हैं, जबकि बाकी डिवोटीज तो सर हिलाते हैं, कोई आंखों में आंसू आता है। तो ये चीज तो मैंने बिल्कुल देखा है। आश्रम के सारे सन्यासी बहुत अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो फिर जी। मैं तो ऐसा हूँ, मेरे को भाव टाव है तो होता ही नहीं, बिल्कुल प्रेम ही नहीं है मेरे में भगवान के प्रति, क्या करूँ। अच्छा नेक्स्ट चलो क्वेश्चन। हाँ, मेरा 4th क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ ब्राह्मण कॉन्शियसनेस, डज इट मीन टू सी ब्राह्मण इन ऑल बीइंग्स और समथिंग एल्स एंड समथिंग मोर? दोनों सच्ची बताया जाए कि अच्छा। जैसे रोगी नारायण, रोगी को नारायण गुरु की सेवा करना है, तो रोगी जी को सेवा करना है, और सड़क पर चलने वाले को सेवा नहीं करना। सड़क चलने वाले को क्या जी नहीं देखना, भी देखना है, जी। पक्षी में भी देखना है, पेड़ों में भी देखना है, मन में भी देखना है। अरे हम शरीर में खुद में तो गॉड कॉन्शियसनेस नहीं होती है, बाहर में क्या गॉड कॉन्शियसनेस होगी? क्या देखूं? तो फिर ये प्रश्न इतना जो है ना, आसान इरेलेवेंट क्वेश्चन हो जाता है। जी। We don't see God within ourselves and talk in terms of Brahman consciousness. फालतू की बात। एवरीवेयर भगवान, पहले खुद के भीतर देखो, खुद के भीतर तो कुछ नहीं देखता, कभी नहीं दिखता है। क्वेश्चन पूछते हैं, हमको क्या भगवान का सब जगह दर्शन करना चाहिए? अरे बाबा पहले अपने भीतर दर्शन करो ना, फिर बात आई। यत नमो मनोयाति तत्र तत्र ब्रह्म भाति, जहां जहां मन जाता है वहीं पर भगवान है। जी ये साधना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, करो इसको। जी ठीक है, ठीक है। प्रणाम महाराज, मेरा हो गया। आंखें खोल कर भी और बंद करके भी। और ये जो है ना ब्रह्म कॉन्शियसनेस जो है, ये जो जिस स्थान से तुमने लिया है वहां पे है, वो 4 लेवल बताए गए हैं। प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्र, तीसरा ध्यान, और चौथा है ब्रह्म का ध्यान, ब्रह्म ध्यान। ये 4 लेवल, प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा, स्वयं पूजा उत्तमोत्तमा, ये 4 है, उसके लेवल में बताया गया है। तो जहां पर है उसके अनुसार किया जाए। जी चलो नेक्स्ट। प्रणाम महाराज। देवाशीष आ जाओ। हाँ प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पुरश्चरणा? You have the eternal companion with you? Yes. है, लेकिन अभी इस वक्त नहीं है। नहीं, इटर्नल कंपैशन किताब है तुम्हारे पास में? है। हाँ, उसमें देखना, उसके अपेंडिक्स में पुरस्चरण दिया है। ओके। यानी ये क्या है कि एकादशी से प्रतिपद से पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा से उसके बाद में प्रतिपद तक, तो 15 दिन में पहले दिन 1000 जप करना। अच्छा। द्वितीया को 2000 करना। अच्छा। तृतीया को 3000 जप करना। अच्छा। चतुर्थी को 4000 करना। अच्छा। ऐसे धीरे 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 15000 तक ले जाना। अच्छा। फिर उसको धीरे धीरे कम करना। अच्छा। ऐसे उसको 1000 तक लाना। अच्छा। फिर ऐसा करना। अच्छा। तो ये नियम बनाकर जप करने को पुरस्चरण कहते। अच्छा।
अगर हम उसको और भी कई रूल्स कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग। ये मैंने एक प्रकार का रूल बताया। हाँ हाँ एक दिन हम 2000 करेंगे, दूसरे दिन 4000 करेंगे, तीसरे दिन फिर 2000 करेंगे, चौथे दिन 4000 करेंगे, ऐसा भी हाँ कर सकते हो। हाँ हाँ अलग अलग प्रकार के उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शन लेके और गुरु के सामने संकल्प करके, और ये पुरस्चरण किया जाता है। ओहो अच्छा, थैंक यू महाराज जी। सेकंड क्वेश्चन था, लेकिन तो काफी डिस्कशन हो गया। हाउ टू डेवलप इंटेंस लव एंड अटैचमेंट टू गॉड स्टेप बाय स्टेप। ऐसा स्टेप बाय स्टेप की बात जो है वही माना, प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि, मध्यमा उत्तमा, मानसी पूजा, सोहम पूजा, उत्तमा उत्तमा, ये 4 स्टेप बताई हैं। हाँ पहले प्रतिमा पूजा से स्टार्ट करो, उसके साथ हाँ में जब ध्यान करो, जो पूजा होती है ना, फिर हाँ ध्यान करो, और उसके बाद सर्वत्र ब्रह्म देखो। तो ये स्टेप्स हुए ना, तुम स्टेप्स पूछ रहे हो, तो ये एक स्टेप्स हुई। अच्छा, उसके बाद में ठाकुर ने क्या कहा है, 4 स्टेप बताई हैं। हाँ सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करो, हाँ साधु संग करो, नित्यानित्य विवेक हाँ करो, और बीच में ये निर्जन वास करो। ये 4 स्टेप हो गई। अच्छा, हाँ महाराज भक्ति जी। शास्त्र में साधना है, 4 स्टेप है। पातंजल योग त्रिश में 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। तो सभी जगह पे साधना की स्टेप्स दिखाई गई हैं, आप कोई भी करके लिख सकते हो। हाँ ओके, थैंक यू महाराज। और तुमने सुनो तुमने जो जिस यहाँ पूछा, पढ़ो ना, जहाँ से पूछा उसको प्रश्न है तुम्हारे पास में, कब किताब है जहाँ से पढ़ा मैंने, ये 161 है ना? हाँ, पूरा पढ़ो तो उसको पढ़ो, पैराग्राफ पढ़ो। 161 जो पढ़ो, जिनने पढ़ा तो पढ़ो। without intense love and attachment for God, it is very difficult for the beginner to perform sadhana in the right way, even after retiring into solitude. In solitude, there is always a possibility of serious consequences. Therefore, two of a similar type and temperament should live together. In that case, mutual help and guidance may be rendered. Should any crisis befall or other at any time. On the other hand, if the number is more than 2, gossip and confusion enter in, and nothing is more. वो बाद में सुनो शुरू में जो है without intense, शुरू में कहा है, अच्छा, यानी शुरू में क्या कहा है, पहले शुरू, ट्रू लव ऑफ गॉड एंड डिटैचमेंट की पढ़ो तो। always perform your sadhana with unswerving steadfastness, and do not let a single day pass by without it, whether you wish it or not. स्टेप्स दी गई है जो तुमने पढ़ा ना, उसमें स्वामी महाराज ने खुद स्टेप्स दी गई हैं। हाँ महाराज जी, हाँ, इसको वो तो दिया हुआ है, मैंने बता दिया तुमको, लेकिन वहाँ स्टेप्स तो दिया ही हुआ है। हाँ महाराज जी, जैसे सुबीर ने बताया कि उन्होंने खुद स्टेप्स बना लिया है, उसी तरह से इस पैसेज में से हमको भी स्टेप्स बना लेना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन लो। थर्ड क्वेश्चन तो अभी भी आपने बता दिया, ये मैडम ने पूछी है, इतु घोष ने पूछी है। अब फिफ्थ वाला, लास्ट वाला है कि external troubles are negligible compared to the internal. Hence, the many injunctions about asana and mudra in puja. How asana and mudra help to remove the internal troubles. अभी डिस्कस थोड़ा सा किया हमने। वो मुद्रा में जो उंगलियां को है ना, उसको वर्णन करते हैं सारा। वो बहुत सारे मुद्राएं हैं। इस मुद्रा से चित्त शुद्धि होती है, इस मुद्रा से भगवान में मन लगता है, इस मुद्रा से काम कम होता है, इस मुद्रा से हमारे विचार जो है वो शुद्ध होते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्णन हैं। इन मुद्राओं के माध्यम से हमारा मन संसार से अलग होगा।
संसार में हम कितनी संसार में की चिंता करते रहते हैं ना, उसके बदले किसकी चिंता करने लग गए? मुद्रा की चिंता करने। अच्छा। मुद्रा से क्या हो गया? मन थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाता है। हाँ। तो इसलिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस और मुद्रा बताए हैं। अच्छा। आसन है तो पद्मासन करके बैठो, पद्मासन नहीं होता है तो सुखासन करो, हाँ नहीं हाँ तो अर्ध पद्मासन करो, हाँ हाँ। ना फिर दूसरा आसन करो और हम्म सीधे बैठो। हम्म। ये अगर करने लग जावे तो मन जो है वो अपना संयत हो जाता है, और अच्छा मुद्राओं के माध्यम से भी मन कंट्रोल होता है, भगवान का चिंतन हो जाता है। अच्छा अच्छा। दूसरा एक लोग पे कहते हैं, अच्छा चलो ये हो गया, इसके आगे चलो, मुद्रा महाराज जी, आसन। हाँ ये मुद्रा, एक मिनट ये मुद्रा महाराज का जी, एक मिनट देवाशीष, एक मिनट। ये प्राणायाम में भी तो मुद्रा का महत्व होता है महाराज जी। हाँ, प्राणायाम तो कई प्रकार के हैं, वो उंगली हो तो इस प्रकार से हाथ रख के प्राणायाम करना पड़ता है, इसलिए ये हाँ सारी के सारे। जी अब दुर्भाग्य ये है ना कि हमारा मन इतना बिखरा हुआ है कि जी, हम केवल ध्यान करेंगे तो नहीं होगा, हाँ बैठेंगे तो भान भागेगा। तो जी, बैठा, पहले आसन ठीक से बैठो, प्राणायाम करो, मुद्रा करके करो, तो आपका 10, 15, 20 मिनट तो आपका इस करने में मन जो है वो संसार से अलग हो गए, ये हमारे पास आ गया तो, जी। अच्छा और इस अच्छा, तरह शुद्ध हो जाता है मन और भगवान में लग जाता बराबर। जी जी महाराज। बहुत अच्छा। महाराज जी, ये जो मुद्रा के बात आप बोल रहे हैं, तो ये कहाँ पर मिलेगा कि किस मुद्रा से क्या इफेक्ट होता है? वो अलग अलग है। है। ये तंत्रों में मिलेगा, तंत्रों में है। तंत्रों से? अच्छा। हाँ, कहाँ कौन सा तंत्र एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकूंगा तुमको। तो ये महाराज पूजा पद्धति रामकृष्ण पूजा पद्धति में है। नहीं नहीं, तो पर इस मंत्र से ये होता है, ये सब ऐसा है क्या? मंत्र का पिक्चर भी है। मंत्र नहीं, तंत्र। मैं मुद्रा नहीं नहीं के बारे में- सॉरी, मुद्रा का पिक्चर है जी रामकृष्ण पूजा पद्धति में। नहीं, पिक्चर तो है, पिक्चर है, ओह पिक्चर है, लेकिन उसका शुभ उपाय परिणाम क्या होता है, ये वर्णन है क्या? हाँ हाँ। ये नहीं, ये वो नहीं पूजा है। के समय क्या 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 मुद्राएं होती वो है। नहीं नहीं, मुझे चाहिए कि बेनिफिट्स। नहीं, बेनिफिट नहीं है वहाँ पे। नहीं, बेनिफिट नहीं। ठीक है महाराज जी, खत्म। महाराज क्वेश्चन समाप्त हो। थैंक यू महाराज। सतीश आ जाओ, सतीश। सतीश है। हाँ, भाग गए। नहीं नहीं है महाराज जी, है। अनम्यूट करना है उनको। अच्छा, वो म्यूट है। महाराज। प्रणाम महाराज। यस बोलिए महाराज। महाराज जी, आप अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूट हो गए। हाँ चलो, अब चलो। जी प्रणाम महाराज। हाँ, महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन, page 151. One should meditate on the form of the Ishta along with japa. Otherwise, japa does not become effective. My question, Maharaj, is the form of Ishta does not stay for long in the imagination as thoughts overcome the mind. However, देखो। japa continues. What should I do? देखो देखो, जी महाराज। भगवान को नाम और रूप समझते हो तो दो चीजें हैं। जी जी एक सतीश विक तुम्हारा नाम है और तुम्हारा एक रूप में हम देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो में, देख रहे हैं। जी ये भी हो सकता है कि आपके रूप नहीं दिखे, केवल आप बात करें तो केवल नाम ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। जी। लेकिन दोनों चाह रहे हैं ना हमको, हम हाँ जी, तुमको हाँ। देख रहे हैं, तुम हमारी जी। बात भी सुन रहे हो और हमारे फोटो भी देख रहे हो। जी महाराज। जी महाराज। तो भगवान के लिए भी अगर आपको मन में भगवान को बिठाना है तो नाम और रूप दोनों होना चाहिए। जी जी। तो नाम से अगर जैसे हम आपका नाम सतीश लेते हैं तो आपका रूप ऑटोमेटिकली हमारे मन में आ जाता है, उससे संबंध है। जी महाराज। जी महाराज। लेकिन अब कंसंट्रेट करके आप नहीं करेंगे, जब तो जब चला जाएगा, जब होता रहेगा, बिट बिट कर रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं, लेकिन राम का रूप नहीं आएगा।
एकाग्र मन से करेंगे तो राम का शब्द लेते ही राम का रूप भी हमारे मन में आ जाएगा, जी महाराज, जी महाराज, हमेशा उठ जाएगा। जी इसलिए सावधानी से करना चाहिए। जब कर रहे हैं और नाम जा रहा है कुछ काम का नहीं, और मत जब कर रहे हैं रूप नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं महाराज, जब अर्थ भाव, उसका अर्थ करो, या तो नाम करो या गुण करो या उसका स्वरूप करो, जो भी करो, लेकिन जब के साथ में उनका रूप या अर्थ अवश्य होना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं। वो महाराज स्पष्ट नहीं होता, वो रूप स्पष्ट नहीं आता, वो कभी वो मतलब कि वेग हो जाता है। नहीं नहीं, क्या बात है, प्रैक्टिस करो, ये क्या बात, जी महाराज, वेग हो जाता है, पहले तो स्पष्ट बातचीत होता करने है, से नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं स्पष्ट करते। होता है, कुछ समय बाद वेग हो जाता है, ये वेग नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, वो रखना चाहिए। यानी उसके साथ ऐसा है कि सत्ता का भाव बना रहे तो भी ठीक है, चल जाएगा। जी, प्रेजेंस बना रहे तो भी चल जाएगा। प्रेजेंस बना रहे, प्रेजेंस बना, माइंड में प्रेजेंस। सेकंड क्वेश्चन महाराज, हाँ हाँ, the mind is man's doorman. What does it mean? Does it mean it keeps the evil thoughts out? यस यस, माइंड में ही तो evil thoughts होते हैं। यही। तो ये बुद्धि का काम है या माइंड का काम नहीं तो ठीक है। अब ये किसी का भी काम हो, यहाँ पे भगवान, ये तो मन बुद्धि अहंकार का डिस्कशन तो हो नहीं रहा है। मन से अहंकार भी आ जाएगा, बुद्धि भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। जी जी जी, ठीक महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, when mind ceases to be active, then a true religion begins, but others believe that this is the end. Does it mean that man should be made dull and tamasic as far as worldly matters go? ना, ये सब मत करो। माइंड को कभी डल मत होने दो। जी जी जी, कभी मन को डल नहीं रखना है, मन को एक्टिव रख के भगवान में लगाना है। जी जी, दुनिया की तरफ से, वर्ल्डली मैटर्स की तरफ से डल हो जाना चाहिए। नहीं, वो तो खैर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। भगवान में पूरा मन लगाओगे तो ऑटोमेटिकली डल हो जाएगा। जी महाराज, ठीक ठीक महाराज। उसको डल लगाने के करने की जरूरत नहीं है, तो फिलोसॉफिकल बात हो गई। जी जी महाराज। अरे भगवान में पूरा मन लगाओ, पूरा एक्टिव करके। क्यों चिंतन करते हो कि मन वहां जा रहा है कि नहीं वहां जा रहा? जी जी महाराज, जी जी, उसको डल करने की जरूरत नहीं है, भगवान में पूरा मन लगाने का। नहीं तो वहां डल करोगे तो भगवान में भी डल हो जाएगा। जी जी, तो इसमें संसार में भी एक्टिव रहना चाहिए माइंड, मतलब महाराज इसका क्या है? संसार में भी एक्टिव रहना चाहिए, अपने काम में भी एक्टिव रहना चाहिए, जो भी काम करें हम उसमें। हाँ। लेकिन प्रश्न यह है कि आप उसके बाद में अपने मन को हटा सकते हो कि नहीं हटा सकते हो? काम में एक्टिव तो हो गए, लेकिन जब ध्यान में बैठे तब बिल्कुल ध्यान में मन जा ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी 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 महाराज, तो वो कैसे करें महाराज? अगर काम कर जाओगे। जी महाराज, तो कैसे करें महाराज? काम में जब मन ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर ध्यान में नहीं जाता, उसका क्या इलाज? हाँ, ये तो मुश्किल है, यही तो बात है। काम को करो, थोड़ा सा डल करो, क्या करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। The easiest way to draw the mind back from worldly thoughts and to make it calm and steady is japa. Yes. There are other paths too. महाराज, what are the other paths? दूसरे त्रिकोण से है कि तो जपा है। महाराज ने कहा सबसे easiest तरीका है वो जप करना, जिससे कि वर्ल्डली थॉट से माइंड जो है वो विड्रॉ हो जाता है और काम और स्टडी हो जाता है। दूसरे भी पास में विचार का मार्ग है, विचार का मार्ग है। तुम तो विचार के मार्गी हो, इतना विचार करते हो। जी जी महाराज, विचार के पूजा भजन है, कर्मयोग है जी, ये तो इतने सारे तो मार्ग है ना। जी 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 महाराज, जी महाराज, ठीक ठीक महाराज, ठीक। महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन, to a question that one must meditate on the meaning of the mantra, Swami says the mantra is just the name of Ishta, जो अभी आपने महाराज बताया।
बट जो बीज मंत्र होता है, जो हमें बीज मंत्र का नाम मिलता है, उस पर कैसे उसका? वो ऐसा है कि ये क्या है कि ये गुरु, ये बीज मंत्र, ये मुद्रा इत्यादि जो है ना, ये सब तांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, जी जी वेदों में नहीं है। और बीज मंत्र भी जो है ना, वो वस्तुतः देवता का ही संक्षिप्त नाम है। जी जी महाराज। जैसे मैं जानता हूँ जी, मैं जानता हूँ कि एक भक्त को, एक लेडी डिवोटी को मंत्र दिया गया था रिंग शारदा। रिंग शारदा नाम, माँ शारदा का नाम दिया था, रिंग लगा दिया था। जी वो ओम जो है, ओम भी एक बीज मंत्र माना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ओम आप किसी के साथ में लगा दो, ओम राम कृष्ण, ओम राम, ओम कृष्ण। तो ये भगवान के मंत्र हैं। किसी को सच पूछा जाए तो मंत्र भगवान के ही मंत्र कहा जाता है। जी जी। और गुरु के आदेश से उनका जप किया जा सकता है। भगवान के एट्रीब्यूट्स को, भगवान के एट्रीब्यूट्स का मतलब कि बीज मंत्र होता है। जैसे एट्रीब्यूट्स है, जैसे ओम है, ओम स्वरूप है भगवान। एट्रीब्यूट सुनो, ऐसा है कि एट्रीब्यूट यानी भगवान का जो नाम है, वो भगवान का नाम है। उसके अंदर तो नाम के साथ में उसका रूप भी आ गया, एट्रीब्यूट्स भी आ गया, स्वरूप भी आ गया। तो ऐसा नहीं है, बीज मंत्र जो है वो एट्रीब्यूट भी है और बाकी भी है। जी जी, सभी है वो। बीज मंत्र भगवान के स्वरूप का भी मंत्र है और रिप्रेजेंटेटिव है, उसके रूप का भी रिप्रेजेंटेटिव है और उसके गुणों का भी रिप्रेजेंटेटिव। जी जी महाराज। महाराज क्या होता है कि वो जब हम बीज मंत्र करते हैं तो जैसे कि लिखा, जैसे हमने योग में पढ़ा है कि जब तब अर्थ भावनम, तो अर्थ का क्या विचार करना चाहिए या सिर्फ उसकी धारणा होनी चाहिए? धारणा नहीं हो पाती इतनी। ऐसा है कि अर्थ को अच्छी तरह मन में ठीक से पढ़ लो, उसको अच्छी तरह से विचार कर लें अच्छी तरह से। नहीं पढ़ के एक भाव मन में आएगा। अब जैसे श्री राम कृष्ण की तो बहुत सारी किताबें है ना। जी 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 महाराज। श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग है, वचनामृत है, श्री राम कृष्ण को जैसा हमने उन्हें देखा, ऐसी बहुत सारी किताबें श्री राम कृष्ण की हैं। तो क्या श्री राम कृष्ण का नाम करोगे तो क्या सबका चिंतन करोगे क्या? जी जी। वो इस सब श्री राम कृष्ण के नाम का एक प्रभाव पड़ के एक कंपोजिट नाम रामकृष्ण नाम बना है। जी जी महाराज। तो बच्चा एक बच्चे को बोल दिया, देख बेटा ये श्री राम कृष्ण। जी। और वो श्री राम कृष्ण का जब ध्यान करेगा तो उसका राम कृष्ण का ध्यान और मेरा राम कृष्ण का ध्यान, उसमें क्या फर्क नहीं होगा? जी महाराज। ये बात है। वो वही राम कृष्ण जो हैं वो मेरे लिए फिजिकल बॉडी में नहीं है, उसके साथ में वो सब सद्गुणों के घनीभूत विग्रह हो जाते हैं, सच्चिदानंद हो जाते हैं। और ये भाव जो है वो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक नहीं आना है, एक साथ बनाया भाव रामकृष्ण का आएगा। नहीं तो जब कर रहे हैं तो क्या आप उसके गुणों का चिंतन करोगे? दोनों एक साथ नहीं होगा। जी 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 मतलब कहने का महाराज एक प्रश्न पूछना चाहती, ये जो बीज मंत्र और दूसरा है, मेरा ऐसा आइडिया क्या था कि ये निर्गुण और सगुण ऐसा है क्या महाराज? मेरा रॉन्ग आइडिया है क्या? नहीं अब आप पता नहीं, ये भी हो सकता है। यानी श्री रामकृष्ण यानी वो, ये मेरे को पता लगाना है। मैंने लोगों से बात किया तो किसी ने तो ऐसा कहा नहीं मुझे कि निर्गुण और सगुण की बात। तो किताब में भी मैंने देखा नहीं, वहां तो निर्गुण सगुण तो नहीं कहा है। अब मेरे को नहीं मिला इस चीज का। लेकिन तुम्हारा ये आइडिया ठीक है कि माँ शारदा का जो निर्गुण रूप है वो तो रिम से अभिव्यक्त हुआ है और शारदा से उनका सगुण साकार सगुण सा, ऐसा मेरे मन में आता है। आइडिया अच्छा है, कैन बी टेकन अप लाइक दिस। हमारे मन में भाव रहना चाहिए कि जिसका नाम ले रहे हैं वो सच्चिदानंद है। ये भाव तो भाव रहना चाहिए, भाव रहना चाहिए। ठीक ठीक बात। Swami ji quotes the Thakur that the place of digging must not be shifted again and again. The place of digging must not be shifted again and again. Maharaj, what does this mean? Does it mean shifting of mantra or guru or ishta? हाँ, क्या है कि गुरु मंत्र बार बार चेंज करोगे तो तुम क्या पाओगे?
एक गुरु को ले लिया, एक मंत्र को ले लिया और एक इष्ट को ले लिया और एक साधना पद्धति को लेके करो, तब तो एक लक्ष्य पे पाओगे। नहीं तो एक बार कार से जा रहे हो और उसके बाद पैदल जा रहे हो, उसके बाद एक रास्ते से दिल्ली जा रहे हो, उसके बाद दूसरे रास्ते से दिल्ली जा रहे हो, तो फिर बदलते जाओगे तो कैसे पहुंचोगे? यानी एक जगह कुआं खोदो तो कुआं खोदते खोदते एक ही जगह खोदने पे तो पानी मिलेगा। 20 फीट खोदा तब पानी नहीं आया तो अरे भाई यहाँ नहीं, दूसरे जगह पे खोदो। दूसरे गोट पे 15 फीट पे पानी नहीं आया तो अरे भाई दूसरे जगह खोदो, तब पानी तुमको कभी नहीं मिलेगा। ये that is the thing. जी महाराज, एक ही जगह फोकस करके वो करना पड़ेगा। महाराज लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू टू मेडिटेट ऑन गॉड एज ऑल परवेडिंग स्पिरिट? उसमें है ना, हाउ टू मेडिटेट ऑन गॉड एज ऑल परवेडिंग स्पिरिट, कि वो हर जगह सर्वव्यापी है परमात्मा। ये ध्यान कैसे? ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी। हाँ, वो ऐसा है कि यतीश्वरानंद जी बहुत कहा करते थे इस चीज को, सभी को कहते थे, हर एक व्यक्ति को कहते थे, दीक्षा कर देते थे, उसके बाद इंस्ट्रक्शन देते थे कि जब बैठ के सोचो कि सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है। जी जी चैतन्य लाइट है। मैं तो जैसे आप आकाश को देखते हो ना, आकाश सर्वत्र है, तो आकाश जैसा उसका चिंतन सर्वत्र करो। लेकिन हमारी अभ्यास नहीं है तो थोड़ी देर करके आप थक जाएंगे, थोड़ी देर करके उसके बाद में अब तुम अपने गुरु इष्ट का ध्यान करने लग जाओ, रूप पे आ जाओ। तो इस प्रकार से बात करते थे। ठीक ठीक महाराज, ओके, ठीक ठीक, प्रणाम महाराज, प्रणाम। सपना सपना Pranam Maharaj. Maharaj, first question है page 151 third para. We try to third para. Yes. You have. Sorry. In the beginning, start with a method suited to your temperament. Now, generally, we try to follow Guru's instructions. How can a sadhak choose his method of sadhana? ऐसा है कि गुरु और कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु की होती है। Okay. देखो उसमें तीन, देखो सामने देखो, उसमें 3 बातें याद रखो। गुरु केवल मंत्र दिया बस, और कुछ नहीं दिया, है ना जी। हाँ, तो गुरु जो मंत्र देता है तुम्हारे टेम्परामेंट के अनुसार देता है। अच्छा। हमको जो मंत्र, मेरे को अच्छी तरह मालूम है, मुझे जो मंत्र दिया था और मुझे मेरे दूसरा एक गुरु भाई था उसको मंत्र दिया था, वो बिल्कुल अलग था। अच्छा। तो ये पहले वाले गुरु जो थे उस समय में कम शिष्य भी होते थे, जी, तो इंडिविजुअली करते थे। जी। अगर चार शिष्य राम मंत्र वाले हों तो 4 को एक साथ कर देते थे। अगर 10 शिष्य रामकृष्ण नाम वाले हों तो 10 को एक साथ कर देते थे जी। लेकिन अगर निराकार मंत्र का निराकार वाला हो तो उसको अकेले ही देते थे जी। तो पहले जो है वो टेम्परामेंट के अनुसार, ये टेम्परामेंट का अर्थ यह है तुम्हारी प्रकृति, तुम राम के टेम्परामेंट के हो या कृष्ण के टेम्परामेंट के हो या निराकार के टेम्परामेंट के, तो ये मंत्र देते। अच्छा, ठीक। पहला जो दूसरा है इंस्ट्रक्शन। तुम सुनो, इंस्ट्रक्शन तो सबको साथ में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तुमको सुबह उठ के ध्यान जप करना पड़ेगा, सीधे बैठना पड़ेगा, तो ये तो कॉमन इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब उसमें टेम्परामेंट का बात नहीं आती। ठीक। और तीसरा है सारा जीवन का। तो भाई एक जो है सारा जीवन साधक अपने को, गुरु ने तो कुछ बोला नहीं। गुरु ने ये नहीं बोला कि सन्यास ले लो, चाहे जंगल में जाके रहो या फिर ये जॉब करो या जॉब करो, नहीं, ये कुछ नहीं बोलते हैं। ये अपने आप अनुसार करो तुम। ठीक है। ठीक।
सेकंड क्वेश्चन है पेज नंबर 155 second para. Japa and meditation are impossible unless you transcend the limitations of rajas and tamas and become established in sattva. इसका सिग्निफिकेंस क्या है महाराज, ये जो एक्सटेंड कीजिए। अरे भाई नींद आ रही है तो जब करोगे तो कैसे काम चलेगा? ओ अच्छा 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 अच्छा, मैं सोच रही थी कि एकदम रजस है तमस गुण जिनका खत्म हो जाएगा। डरने से, अरे मैं अभी ध्यान जब मैं जाके बैठूंगा वहां पे, अब रोज मैं जाके लाटू महाराज के कमरे में बैठता, रोज थकान आती है। अरे इस बुढ़ापे में जो ना थकान ही थकान है, जी ये जी तमोगुण जी बढ़ गया है, क्या करोगे? समझ गई। या फिर मन इतना रेस्टलेस है मन, जी बैठे हैं तो हाथ पैर हिला रहे हैं, हाँ ये रजोगुण हो गया। अब 15 मिनट भी ठीक से बैठ नहीं पाते, ये रजोगुण हो गया। तो इसके तब ये होंगे, तब तक कैसे काम चलेगा? हाँ मगर ऐसा भी तो कभी कभी होता है ना कि मन बहुत चंचल रहता है किसी कारण में, या कोई घटना हो गई, कुछ भी दुखद घटना हो गई, तो उसमें अगर हम कुछ स्क्रिप्चर पढ़े, हो सकता है कि जप नहीं चल रहा है, मन में मन चंचल है, तो हम पढ़ सकते हैं ना कथामृत। हाँ 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 हाँ, तो बहुत हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ 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 हाँ, श्योर। हाँ 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 ठीक। ठीक। और महाराज थर्ड क्वेश्चन है 171, ये फास्ट पैरा थोड़ा सा समझा दीजिए। एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन यू मस्ट थिंक दैट डिजायर्स एंड पैशंस हैव नो एग्जिस्टेंस एंड दैट दे आर अनरियल। ग्रेजुअली दिस impression will sink into your mind. As you drive out these thoughts, good thoughts will automatically come. नहीं तो क्या है, ये ऐसा करो जो बोला है वैसा करो ना। जब बैठो ध्यान करने के लिए तो सोच रहे हो कि मैं पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, मेरे मन में कोई बीमार दवाई रोग नहीं है, मेरे मन में काम क्रोध लोभ मन में नहीं है, सोचो ना ऐसा। अच्छा, they are unreal. Okay. यही बोल रहे हैं। मैं निर्गुण निराकार हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये तो सोचो ना। एक बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि जैन धर्म में तो कहते हैं कि तुम ये बैठ कर सोचो कि तुम वो तीर्थंकर हो, खुद तुम तीर्थंकर हो, भगवान तीर्थंकर जो थे ना प्रॉफिट, तुम खुद हो, ऐसा सोचो। अच्छा। देखो ना, देखोगे अच्छा। मन बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ करके देखो। ठीक है महाराज, ठीक। हाँ। प्रणाम महाराज, इतना ही है। शिवानी आ जाओ। शिवानी। प्रणाम महाराज। इस बार तुम्हारे पहले बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए थे, क्या करूं? तुम्हारा नंबर देर से है। नहीं महाराज, वो संडे को नहीं अपलोड होता ना आर्टिकल, मैं संडे मंडे मुझे ज्यादा सूटेबल रहता पढ़ने के लिए। फिर वो लेट हाँ ओके। मैं तो जैसा आते हैं ना उसके अनुसार, जैसे हमें आई एम नॉट, मैं तेरे को पार्षद नहीं है भाई, जिसने सबसे पहले जिसने पूछा उसका सबसे पहले आंसर देना, ऐसा सब मैंने बना रखा है नियम। ठीक है महाराज वो चीज। हाँ महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 172। Swamiji used to say that a little awakening of the Kundalini is very dangerous. Until she rises up higher, lust, anger, and other lower passions become very disturbing. What to do then? It means it's not safe to do the practice. कि ये जो भी हम मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, अल्टीमेटली इट विल लीड टू दैट अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी ओनली। আমরা তো ভালো আছি, क्या है तुम्हारा प्रश्न? क्या है कुंडलिनी के बारे में ना? हेलो। हाँ जी महाराज।
हाँ, तुम्हारा है कि स्वामी जी ने कहा है कि कुंडली ने जागृत हो जाएगी तो डेंजरस हो जाएगा। हाँ, इट इज डेंजरस। हाँ जी, तो why it उसकी is चिंता dangerous? मत करो और चिंता नहीं करोगे, है? ऐसा है कि यू मस्ट बी केयरफुल, डोंट वरी अबाउट इट। ये वो इतनी आसानी से कुंडली जागृत नहीं होती, नहीं, डोंट वरी। बट महाराज ये जो मेडिटेशन वगैरह ये सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स विल लीड टू दैट ओनली ना, ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। डोंट वरी अबाउट, इतनी आसानी से नहीं होगा। हाँ, अपने दूसरा है सत्संग में रहो, स्वाध्याय करते रहो तो ये कंट्रोल में रहती है, लेकिन कभी न कभी तो उठने वाली है ना। उसके पहले आपकी चित्त शुद्धि हो जानी चाहिए। उसके साथ में चित्त शुद्धि करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ये सब करते रहो, उसके बाद में होगी तब देखा जाए। ठीक है, कुछ चिंता मत करो। ठीक है महाराज। सेकंड क्वेश्चन है पेज नंबर 176। क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं इसमें महाराज, सम थिंक ऑफ द इष्टा एज ऑल परवेडिंग स्पिरिट, इज दिस आल्सो अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन? Yes, quite so. Everyone has to practice this form of meditation, but only after making some progress in spiritual life. So my question is, how do we know that we are progressing in our spiritual life? ऐसे मैंने जो डिस्कस किया ना, यतीश्वर सबको कहते थे कि ध्यान करने पहले ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस की बात सोचो। शुरू करने के पहले सोचो कि ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस है, उस परमात्मा ने तुम्हारा रूप ले लिया है और एक इष्ट का रूप ले लिया है। उसके बाद इष्ट का ध्यान करो, उसके बाद में इष्ट का रूप और तुम्हारा रूप दोनों को ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस में विलीन कर दो। ये तुम इनकी डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस होती थी सबके लिए। जब दीक्षा देते थे उसके बाद में सबको 10, 20, 25 दिन को दीक्षा दिए, एक साथ बोल के कहते थे ध्यान करने के बारे में पहले सोचो कि परमात्मा सर्वव्यापी विद्यमान है, आकाश ज्योति की तरह। उस ज्योति ने तुम्हारे इष्ट का रूप ले लिया है, उसने तुम्हारा भी रूप ले लिया है। अब दोनों का ध्यान करो, उसके बाद दोनों को विलीन करो। तो वो चिंता मत करो, वो बाद में यानी शुरू तो जहां से भी करोगे करो ना, उसके बाद धीरे धीरे देखोगे कि तुम अपना स्वरूप भी धीरे धीरे अपने सोचने लग जाओगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा भी जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप। चलने दो। ठीक है महाराज। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 154। ये सुबीर सर ने भी पूछा था, थोड़ा उसी से रिलेटेड है। फेथ कैन नॉट बी हैड इन द बिगिनिंग, फर्स्ट रियलाइजेशन देन फेथ। Why first realization then faith, as everyone may not be able to realize? So how faith will come? We have discussed now to begin with blind faith. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया था वैसे डिस्कस। Already discussed. Begin with blind faith. ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है महाराज पेज नंबर 163। Again, if you really want spiritual realization, you must settle down in a particular place and carry on your sadhana uninterrupted for some time. Please guide me on this, as I feel this is true. What can we do now? Because you are fully established. You are well established. Why do you worry about that? You yourself want to disturb yourself. What is this? एक स्कूल में हो, प्रिंसिपल हो, एक जगह पे रह रही हो, why are you bothering about this? नहीं, here I am thinking, here I am thinking that they are talking about spiritual place, maybe kind of. It is not happening. नहीं, संसार में तो सभी लोगों के लिए ये बोला है। ठीक है। संसार में क्या सभी काशी में? अरे सब काशी में तो नहीं रह सकते, सब काशी में थोड़ी रह सकते हैं। संसार में इतने लोग हैं, भक्त लोग हैं, सर्वत्र विद्यमान है। दिल्ली, लंदन, काशी, बनारस, सब जगह तो लोग हैं। दिल्ली में भी तो लोग रहते हैं। उसमें क्या है, जहां भी हो तुम अपना मन लगा के बैठो, अपने मकान को, अपने कमरे को, अपने क्वार्टर जो भी हो,
उसको श्राइन अच्छी तरह बनाओ, तो कमरे से अब जब जहाँ काम करते हो, जब लौट के कमरे घर में आओ तो अब लगे कि आप आश्रम में आ गए हो। हम जब स्टूडेंट थे तो आश्रम तो हमने बढ़िया अपने, हमारा कमरा जो था उसमें एक बढ़िया श्राइन बना रखी थी। हमारा आश्रम में कमरे में आते ही हमारा ध्यान होने लग जाता था। नहीं, वो तो आपके कहने तो क्या पे है मैं, इसमें क्या है? हाँ, डोंट डिस्टर्ब योरसेल्फ विद दिस। ठीक है महाराज, दैट्स गो ऑल। अहेड। हाँ, दैट्स ऑल। रीता बिश्वाल, कम ऑन। प्रणाम स्वामी रीता जी। बिश्वाल। यस स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। माय फर्स्ट Just a minute, क्वेश्चन। ओ बैटरी हमारी डाउन हो रही है, जल्दी करो। पेज 151. Maharaj हाँ। says in the beginning, start with the method suited to your temperament. How to know whether the method adopted is suited to one's temperament? You know your own temperament? Yes, to a certain extent. तो क्या करेंगे उसको? अब वो टेम्परामेंट को नहीं, जैसा अपना टेम्परामेंट है एडजस्ट करने का सिचुएशन करना पड़ेगा। जिस टेम्परामेंट में है, जिस सिचुएशन में है, सिचुएशन टेम्परामेंट। यू कैन नॉट बिकम यू कंप्लीटली इमीडिएटली गो टू आश्रम में तो नहीं जा सकते। नहीं। हाँ चलो। Second question, page 153. How to strengthen one's mind, especially when it is stormed from all directions by the world? एकांतवास, स्वाध्याय, संयम, धैर्य, these are the साधना चल रही है तुम्हारी। भगवान ने Yes, जानबूझ but कर एकांतवास नहीं हो रहा है। भगवान में जानबूझकर तुमको वहां रखा है कि जिससे तुम जरा स्ट्रांग बन जाओ। ओके। हाँ, बीच में थोड़ा साधु संग करो। What does seeing the mantra mean? What does seeing the mantra mean? वो छोड़ दो, don't worry about it. Okay. Then how to transcend the limitations of tamas and rajas? वही जो सब तो डिस्कस तो हो गया है ना। हाँ, it is discussed. सुनो, when tamasgam comes, रजस उठा, यानी नींद आ रही है तो उठ के घूमने फिरने लग जाओ। ओके। रजस होने लग जाए है। Rajas, then shall I ask the next question? Oh, Swamiji's battery. Cannot hear Swamiji. लगता है महाराज का बैटरी खत्म हो गया। हाँ, ये Very different. ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम